Dear students, Assalamu alaikum. Today I will be covering your experiment number 7 for your DST lab, and its title is Sequential Logic Design using Verilog HTL, and we will be shifting our focus from typical sequential logic designs to state machines. I'm sure that you have gone through the concepts of state machines previously in your DLD course. So I will try to refresh your memory a bit, and let's try to explore that what are these state machines. Let's move forward. I've presented the lab objectives here, which you are supposed to write down in your lab report. And the reference, particularly for this lab, has been your textbook, uh, which you all already have with you. And I know that you have not gone through the concepts of the Mealy and Moore state machines, so I will try to explain about them first. Um, Now, first we need to understand that what are the finite state machines. First, I have presented a basic fact here that a control unit, which is normally a brain or a controlling unit of any computer system, it is normally a finite state machine. Uh, in which the behavior of the computer system is predefined and which is dependent upon a set of finite operation scenarios, right? So a finite state machine is any kind of machine that has a finite set of states, right? So let's try to explore this concept a bit more. We This concept is specified for synchronous sequential circuits, and we already know that synchronous sequential circuits are dependent upon the clock signal, either a positive transition or a negative transition, right? And it is based on that transition that the output or the states of the synchronous sequential circuit actually change. So this behavior of synchronous sequential circuits can be represented in a graphical form. I know that you already know that what is the graphical form that I'm trying to talk about, and I will also prepare a state diagram. This graphical form is actually known as a state diagram, and I will prepare a state diagram of an example in this lecture. So, and also we will try to implement it in Verilog. Right. Now, a synchronous sequential circuit is also called a finite state machine if it has a finite number of states, right? Now, there are two types of finite state machines. जो दो बेसिक टाइप की हमने फाइनाइट स्टेट मशीन्स जो आइडेंटिफाई कर ली हैं, these are the Mealy state machine and the Moore state machine, right? And they all types of sequential circuits जो कि typically finite state machines भी हैं, उनमें दो ही बेसिक टाइप्स होती हैं, either they could be Mealy state machine or they could be Moore state machine, और दोनों के अंदर एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, and we will try to focus on that difference, and then we will try to explain through the use of an example that how we can actually design them in using Verilog, right? तो सबसे पहले आ जाता है मीली स्टेट मशीन. मीली स्टेट मशीन को थोड़ा सा इसको ग्राफिकल मैनर में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो दैट विल बी मोर फिजिबल फॉर यू. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर इट. मैंने यहाँ पर दो figures mention की हुई हैं. One is representing a Mealy machine. Both are the block diagrams of Mealy and Moore machine. तो first आती है Mealy machine. इसमें it has three basic blocks. One is the next state combinational logic. यानी ये जो state register है, this is our memory unit, right?
तो स्टेट रजिस्टर जो है मेमोरी यूनिट इसको हम नॉर्मली कहते हैं एंड मेमोरी यूनिट का मतलब ये हुआ कि दैट इट मस्ट बी मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। तो फ्लिप फ्लॉप्स की ऑब्वियसली एक प्रेजेंट स्टेट होती है और एक इसकी नेक्स्ट स्टेट होती है। और तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है इस पर्टिकुलर मेमोरी यूनिट की या फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड हियर। नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशनल लॉजिक, यहाँ पर कोई सर्किट होगा जो कि कैलकुलेट कर रहा होगा इसकी इस मेमोरी यूनिट की नेक्स्ट स्टेट को, और उसके बाद उसकी जो आउटपुट है दैट इज पासिंग थ्रू एन आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक। यहाँ पर भी एक सर्किट होगा ऑब्वियसली जो जो कि ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस सर्किट से जो हमारी फाइनल आउटपुट आ रही है दैट इज कॉल्ड अ मीली टाइप ऑफ आउटपुट। अब इन दोनों ब्लॉक्स में मूर मशीन और मीली मशीन, इन दोनों के अंदर हमें बेसिक डिफरेंस एक क्या नज़र आ रहा है? डिफरेंस ये नज़र आ रहा है कि मीली मशीन के अंदर हमारे पास जो आउटपुट कॉम्बिनेशन लॉजिक का जो ब्लॉक है इट हैज़ अनदर एडिशनल वायर विच इज़ कमिंग फ्रॉम इनपुट, जबकि मूर मशीन में ऐसा नहीं हो रहा। In this, we can see that there is input provided to the next combination logic, and that is being provided to the state register or the memory unit, जो कि clock dependent है। Obviously, दोनों clock dependent ही होंगे क्योंकि हमने already specify कर दिया that they are synchronous types, right? तो उसके बाद हमारे पास जो output combination logic यूज़ हो रही है उससे हमारे पास directly output generate हो रही है which is called the Moore type. So this way we can conclude that let's say अगर हम output को y से denote कर रहे हैं, so this should be a function of, और input को हम अगर x का नाम दे देते हैं let's suppose, तो y should be a function of input x, right? But however यहाँ पर जो y है that is y is not a function of input x, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन होगी somehow जो भी हमारे पास मेमोरी यूनिट की जो नेक्स्ट स्टेट आ रही होगी या जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है इसकी नेक्स्ट स्टेट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, राइट? इसकी आउटपुट जो है, तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस हो गया मीली मशीन और मूर मशीन में। तो इनकी एग्जांपल्स काफ़ी सारी कोटेड हैं इन योर टेक्स्ट बुक, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। एंड लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर द एग्जांपल दैट आई हैव प्रेजेंटेड हियर इन दिस लेक्चर। यहाँ पर मैंने मूर एंड मीली मशीन के बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो मैंने मेंशन कर दिए। तो हम एक एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल को देखते हुए हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे that is that a finite state machine, and then finite state machine के बाद हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे that either it is a Moore type or a Mealy type of finite state machine, and जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद हम उसका कोड बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल मेंशन की हुई है। दिस एग्जांपल हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एंड इसी एग्जांपल को हम यूज़ करेंगे। इसको हम पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज़ अ ज़ीरो डिटेक्टर। तो ज़ीरो डिटेक्टर जो है एज द नेम सजेस्ट इट मस्ट बी डिटेक्टिंग ज़ीरोस, राइट? So if we have a stream of ones, so many ones, and somehow we know that कोई ना कोई लॉजिक ऐसी होगी कि इन स्ट्रीम ऑफ वंस के अंदर कोई एरर भी हो सकता है या कोई और पॉसिबल चेंज भी हो सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ज़ीरोज़ आ रहे होंगे, राइट? अगेन अगेन ज़ीरोज़। तो ये ज़ीरोज़ जो हैं हम एक डिटेक्टर बनाना चाह रहे हैं जो कि ये ज़ीरोज़ को डिटेक्ट करे, और ये ज़ीरो डिटेक्टर ऑब्वियसली ये उस सिचुएशन के अंदर इसकी आउटपुट हाई होगी जब ज़ीरो डिटेक्ट हो जाएगा। Ideally this should be the case. So let's try to understand
इट एक्चुअली में ऐसा हो रहा है या नहीं। फर्स्ट यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम है, एक सीक्वेंशियल सर्किट डायग्राम है, जिसके बारे में ये एक क्लेम है दैट दिस इज़ अ ज़ीरो डिटेक्टर। सो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको हम फर्दर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट डज इट मीन। इसके अंदर हमें दो मेमोरी यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स हैं, डी फ्लिप फ्लॉप्स, डी टाइप्स हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप 1 है, ये फ्लिप फ्लॉप 2 है। तो इसका मतलब कि और दूसरे एक और चीज़ है कि यहाँ पर क्लॉक अप्लाई हो रही है, दीज बोथ आर क्लॉक डिपेंडेंट, और क्लॉक भी सिंक्रोनसली अप्लाई हो रही है। सो दैट मीन्स दैट दे आर बोथ सिंक्रोनसली एक्टिवेटेड। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दिस शुड बी अ फाइनाइट स्टेट मशीन। अब फाइनाइट स्टेट मशीन अगर ये है तो ये किस टाइप की फाइनाइट स्टेट मशीन है, राइट? तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको अगर again if we try to observe it in here, right? यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ तो that will be easier for me. तो we have एक लॉजिक गेट है यहाँ पर। इस लॉजिक गेट के अंदर एक पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनपुट्स कहाँ पर हैं। ये आपकी आउटपुट है, ये आपकी इनपुट है। मेन इनपुट आपकी x है और मेन आउटपुट आपकी y है, राइट? तो अब हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इन इनपुट्स और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप क्या बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट डायग्राम। तो आउटपुट के साथ एक लॉजिक गेट लगा हुआ है विच इज़ बेसिकली एन और गेट। दिखने में ये और गेट ही लग रहा है, और इस आउटपुट के साथ इस और गेट के अलावा और कुछ भी नहीं लगा हुआ डायरेक्टली। बाकी सब चीज़ें जो है वो इनडायरेक्टली लगी हुई हैं। मेमोरी यूनिट जो है ये अलग ब्लॉक इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, और इनपुट का भी इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन कोई भी नहीं है। इनपुट पर जो ये जो गेट्स लगे हुए हैं दीज वंस, इनका भी इस आउटपुट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कोई भी नहीं है, राइट? तो इसका मतलब कि आउटपुट जो है y, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? एक तो समहाउ ये x के ऊपर डिपेंड कर रही है, और दूसरे a के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब मेमोरी यूनिट की जो भी प्रेजेंट स्टेट आ रही है आउटपुट पे, वो हम उस पर डिपेंड कर रही है, और दूसरे मेमोरी यूनिट की भी प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है p। तो इसका मतलब कि y जो है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ x इनपुट। तो इसका मतलब यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि दैट इट शुड बी अ मीली मशीन। इट कैन नॉट बी अ मोर मशीन। तो हम बाकी इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक ये है, इसको हम कहते हैं मेमोरी ब्लॉक, और रिमेनिंग ये जो पार्ट है, दिस होल ब्लॉक इज द नेक्स्ट स्टेट इसको हम कहते हैं नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशनल लॉजिक। यानी यही वो लॉजिक गेट्स हैं, या यही वो सर्किट है जो कि हमारे पास इस इन दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की नेक्स्ट स्टेट को कंप्यूट कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने आउटपुट का जो ब्लॉक बनाया था, ये एक सिंगल और गेट जो है, ये क्या हो गया, दिस विल बिकम द आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक। तो अब हम अगेन जाते हैं अपनी मीली मशीन पे, जिसके अंदर हमारे पास एक आउटपुट कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। यस, ये एक और गेट के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, एक स्टेट रजिस्टर है जो कि एक मेमोरी यूनिट है। यस,
वी हैव अ मेमोरी यूनिट और इसके अंदर एक क्लॉक डिपेंडेंट भी है ये। और सेकेंडली जो हमारे पास है इनपुट का जो सारा पार्ट है दैट इज एक्चुअली कंप्यूटिंग द नेक्स्ट स्टेट ऑफ दिस मेमोरी यूनिट। तो नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशन लॉजिक हो गई, राइट। तो अब जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मीली सर्किट, ये वाला पार्ट जो है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मीली सर्किट, बिकॉज इसके साथ ना तो मेमोरी यूनिट लगा हुआ है ना ही ये बाकी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहा है, राइट। तो अब हम इस मीली मशीन को थोड़ा सा मज़ीद मैथमेटिकल व्यू में देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू क्रिएट state equations. State equations जो है that are not directly like combinational circuits की जिस तरह से equations होती हैं ये उस तरह की equations नहीं होती। State equations जो है they are dependent upon states। तो हम इसको in the form of states observe कर रहे हैं। तो हम इसके ऊपर ऑब्वियसली बुलियन अलजेब्रा भी अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई ये इक्वेशंस जो हैं आई होप दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस कॉन्सेप्ट प्रीवियसली। तो आपको सिर्फ मैं ये रिमाइंड करवा रही हूँ कि स्टेट इक्वेशंस जो हैं वो किस तरह से बनती हैं। तो स्टेट इक्वेशंस में हमने क्या करना है कि हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, वन इज़ D1 एंड अदर इज़ D2, और इनकी जो आउटपुट्स हैं A और B। फर्स्ट D1 की जो आउटपुट है A और D2 की आउटपुट है B, इन दोनों की नेक्स्ट स्टेट्स जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, राइट। तो A की लेट्स कीप इट इन द वाइट कलर एज उसी में ही रखता है। A की नेक्स्ट स्टेट मैंने T+1 से नेक्स्ट स्टेट यानी A ऑफ T जो है वो इसकी प्रेजेंट स्टेट है और A ऑफ T+1 जो है दैट इज इट्स नेक्स्ट स्टेट। ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू, थोड़ी सी अगर मैं यहाँ पर A की नेक्स्ट स्टेट दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम इसको ज़रा थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। A के अंदर जो इनपुट आ रही है, लेट्स ट्राई टू क्लियर इट। ओके, A की जो इनपुट है वो ओके थोड़ा सा ये हैंग हो रहा था। अच्छा, A की इनपुट जो है वो रिसीव हो रही है एक इस पॉइंट से, राइट। सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मैं मेंशन करनी भूल गई हूँ, दैट इज़ हम एक ही नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशनल सर्किट बन रहा था वो ये बन रहा था, दिस वन। तो ए के लिए जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो ये वाला है, ए की नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास दो एंड गेट्स लगे हुए हैं एंड वन और गेट लगा हुआ है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस एंड गेट 1 2 और ये हमारे पास है 3 और गेट है। तो गेट नंबर 1 की इनपुट है एक x है और दूसरी इनपुट कहाँ से आ रही है? a की प्रेजेंट स्टेट से, राइट। और दूसरा जो एंड गेट है, गेट नंबर 2, इसकी एक इनपुट है x और सेकंड इनपुट आ रही है b की प्रेजेंट स्टेट। तो इसको अगर हम इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स मेंशन करने की कोशिश करें तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस कि x की प्रेजेंट स्टेट डॉट a की प्रेजेंट स्टेट। अब एक और गेट भी लगा हुआ है दरमियान में तो प्लस आ जाएगा
and then we will have x की present state again dot b की present state. ठीक हो गया. तो अगर हम इसको प्रेजेंट स्टेट्स अब सबकी अगर है आपकी इक्वेशन की राइट हैंड साइड के ऊपर सब प्रेजेंट स्टेट्स ही हैं तो हम t को हम इग्नोर कर देते हैं. तो लेट्स ट्राई टू राइट इट like this: a t plus 1 equals to x dot a plus x dot b. अब आती है b की. b के लिए हम नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. b की नेक्स्ट स्टेट ये किसके इक्वल होगी? तो b के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर इनपुट साइड के ऊपर जो गेट लगा हुआ है आउटपुट नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशन लॉजिक का जो सर्किट बना हुआ है उसके अंदर सिर्फ एक गेट है एंड गेट. ये है गेट नंबर 1 ऑफ b. तो इसके लिए हमारे पास एक इनपुट आ रही है x से. ये x से इनपुट आ रही है डायरेक्टली और दूसरी इनपुट आ रही है a कॉम्प्लीमेंट से यानी a की प्रेजेंट स्टेट के कॉम्प्लीमेंट से. ठीक है. तो इसको अगर हम इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो इट विल बी ये एक सिंगल गेट है x की प्रेजेंट स्टेट डॉट a की प्रेजेंट स्टेट का होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो राइट हैंड साइड के ऊपर अगेन सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स ही हैं तो हम t को इग्नोर कर देते हैं. x डॉट a कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. राइट. तो ये बन गई b की नेक्स्ट स्टेट. अब इक्वेशन हमने बनानी है y के लिए. तो y की नेक्स्ट स्टेट तो है नहीं. ये हम डायरेक्ट इसको डराइव करते हैं. तो y के साथ हमारे पास a और b ये दोनों स्टेट्स हैं. ये एक सिमिलर टाइप की इक्वेशन सिमिलर टाइप की इनपुट्स हैं तो ये दोनों और हो रही हैं. तो वी कैन राइट दैम एज ये दोनों प्रेजेंट स्टेट्स हैं तो हम t को इग्नोर कर रहे हैं. a प्लस b. राइट. और इन दोनों के साथ x कॉम्प्लीमेंट भी ऐड हो रहा है. यानी यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट जो है x के साथ नॉट गेट लगा हुआ है तो ऑब्वियसली x कॉम्प्लीमेंट आ रहा है. तो अब ये चूंकि स्टेट मशीन है तो इनके ऊपर हम स्टेट वेरिएबल्स हैं तो इनके साथ हम बुलियन अलजेब्रा अप्लाई नहीं कर सकते. तो हम ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि दोनों के साथ a जो है x जो है कॉम्प्लीमेंट वो डॉट हो रहा है. राइट. तो ये समहाउ कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी. दिस विल बी a प्लस b डॉट x कॉम्प्लीमेंट. राइट. तो ये हमारे पास बन गया y की इक्वेशन. अब हमारे पास तीन स्टेट इक्वेशंस बनी है और इन्हीं इक्वेशंस को देखते हुए हम स्टेट टेबल बनाते हैं. स्टेट टेबल. तो स्टेट टेबल इज अ काइंड ऑफ ट्रुथ टेबल बट ट्रुथ टेबल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसके अंदर हम जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम देख रहे होते हैं. तो इसमें हमारे पास है दो स्टेट्स हैं A और B. इनकी प्रेजेंट स्टेट्स हैं. प्रेजेंट स्टेट अगर हम ऊपर मेंशन कर दें ये इनकी प्रेजेंट स्टेट्स हैं और ये हमारे पास वेरिएबल x जो कि हमारे पास इनपुट है. ठीक है. इनके अकॉर्डिंग हमारे पास A और B की नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है और आउटपुट क्या आ रही है. स्टेट इक्वेशंस हम अपने पास यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं. A of t plus 1 equals और b of t plus 1 equals और y equals a plus b x complement और b of t plus 1 क्या बन रहा है. that will be
एक्स डॉट ए कॉम्प्लीमेंट और ए के अंदर क्या है, एक्स डॉट ए प्लस एक्स डॉट बी। एक्स डॉट बी, राइट, और यहाँ पर बन जाएगा एक्स डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमारे पास इनपुट के अगर हम तीन वेरिएबल्स ले रहे हैं और इनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 एंड 1 1 0 1 1 1। ये है ए और बी की नेक्स्ट स्टेट। ठीक हो गया। तो अब हम अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस हम इनकी नेक्स्ट स्टेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर जब हमारे पास a इज़ ज़ीरो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, a इज़ ज़ीरो एंड b इज़ ज़ीरो एंड x इज़ ज़ीरो। तो सबसे पहले हम a की नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर हम पुट करते हैं x ज़ीरो, तो x अगेन सेकंड में भी ज़ीरो, सेकंड टर्म में भी ज़ीरो, तो इसका मतलब हमारे पास a की नेक्स्ट स्टेट जो है दैट विल बी ज़ीरो। और b की नेक्स्ट स्टेट जो है इस इक्वेशन से आएगी। b की नेक्स्ट स्टेट है ज़ीरो डॉट एनी थिंग इज ज़ीरो, तो x ज़ीरो है तो हमारे पास b की नेक्स्ट स्टेट भी ज़ीरो आएगी। और आउटपुट y के अंदर क्या होगा, y के अंदर होगा x कॉम्प्लीमेंट यानी x वन बन गया डॉट a प्लस b, दोनों में ज़ीरो है तो इसका मतलब कि आउटपुट y भी ज़ीरो है। अब हम आते हैं सेकंड केस के अंदर। सेकंड केस के अंदर a की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, अब हमारे पास x के अंदर वन पड़ा हुआ है, वन डॉट a के अंदर ज़ीरो पड़ा हुआ है प्लस वन डॉट b के अंदर अगेन ज़ीरो है, तो इसका मतलब a तो अगेन ज़ीरो है। अब b में क्या हो जाएगा, b के अंदर हो जाएगा वन डॉट a कॉम्प्लीमेंट वन, तो इसका मतलब कि b में वन आ जाएगा। और आउटपुट y के अंदर क्या होगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो डॉट ज़ीरो, तो अगेन यहाँ पर ज़ीरो आएगा, राइट। तो इसी तरह हम थर्ड केस को भी देख लेते हैं एक दफ़ा कि व्हेन वी हैव प्रेजेंट स्टेट a और b ज़ीरो वन है, तो इस केस के अंदर a अच्छा ठीक है, x ज़ीरो है तो हमारे पास a अगेन ज़ीरो है। और b के अंदर क्या हो जाएगा, वन डॉट x अगेन ज़ीरो, और आउटपुट y जो है दैट विल बी a प्लस वन वन डॉट वन, तो आपके पास आउटपुट y हो जाएगी वन, यानी आपके पास x कॉम्प्लीमेंट के अंदर वन आ जाएगा और a प्लस बी के अंदर भी वन होगा क्योंकि हमारे पास b वन है। और फोर्थ केस के अंदर क्या हो जाएगा, इट विल बी वन वन, इट विल बी वन वन, और आउटपुट y विल बी ज़ीरो। फिफ्थ केस के अंदर क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो एंड वन, देन वन ज़ीरो एंड ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो एंड वन, एंड लास्ट में वन ज़ीरो एंड ज़ीरो। तो इसी स्टेट टेबल को अगर हम एक और तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, विच विल मेक इट ईजियर फॉर अस टू डिज़ाइन इट्स स्टेट डायग्राम, तो उसके अकॉर्डिंग हम a और b की प्रेजेंट स्टेट्स ले रहे हैं और a और b की नेक्स्ट स्टेट ले रहे हैं। When we have x equals 0 and x equals 1, यहाँ पर भी a और b की नेक्स्ट स्टेट है। और सिमिलरली हम आउटपुट भी ले रहे हैं, y।
ठीक है, तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 4 ही होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास ये है इनपुट कॉम्बिनेशन। 0 होगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, इज अकॉर्डिंग टू दिस 0 0। कलर चेंज कर लेते हैं इसको, हम 0 0 मेंशन करते हैं। एंड व्हेन वी हैव 0 1 और 0 0 व्हेन वी हैव इनपुट 0 0 एंड x इक्वल्स टू 1, तो तब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ रही है 0 1 यहाँ से इसके अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं थर्ड केस के अंदर। थर्ड केस के अंदर व्हेन x a एंड b बोथ आर 0 1 एंड x इज 0, तब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है 0 0। और जब हमारे पास अगेन 0 1 है और x दिस टाइम इज 1, तो आउटपुट आ रही है 1 1। ठीक है, और उसके बाद आती है नेक्स्ट 1 0 1 0 और इनपुट है 0, तो इस केस के अंदर है 0 0 एंड 1 0 के अंदर जब इनपुट 1 है तो आपके पास आउटपुट आ रही है 1 0। एंड 1 1 के केस के अंदर क्या आ रहा है, वी विल हैव 0 0 एंड 1 0। और आउटपुट्स के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं कि व्हेन वी हैव 0 0 तो आउटपुट है दोनों केसेस के अंदर 0, एंड व्हेन वी हैव नेक्स्ट स्टेट एज 0, तब आपके पास आउटपुट आ रही है 1। अच्छा, y के अंदर भी हमें एक्चुअली बोथ x इक्वल्स 0 और x इक्वल्स 1 के सिनारियो में देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी y होगी, राइट। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 1 1 1 एंड 0 0 0 0। इसको आप रीवेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अब हमें इस स्टेट टेबल को देखते हुए स्टेट डायग्राम बनानी है। स्टेट डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई हुई है ऑलरेडी, यू कैन ऑब्जर्व इट। दिस वन। तो इसी स्टेट डायग्राम को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट टेबल। तो व्हेन वी हैव, यहाँ पर स्टेट्स हैं कितनी, 4 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4। और हर स्टेट की प्रेजेंट फॉर्म है, लेट्स सपोज 0 0, और नेक्स्ट है 0 1 1 0 एंड 1 1। तो व्हेन वी हैव x इक्वल्स 0, व्हेन वी हैव x इक्वल्स 0, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही आ रही है, 0 a और b की 0 0 ही आ रही है। तो इसका मतलब कि व्हेन वी हैव और व्हेन वी हैव x इक्वल्स 1, तो तब ये यानी इनपुट हमारी 1 बन रही है, तो ये नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जा रही है। नेक्स्ट स्टेट इज 0 1, उसको हमने मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। इनपुट हमारे पास 1 है, तो आउटपुट आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। हम ये भी स्पेसिफाई कर रहे हैं व्हेन वी हैव इनपुट, हम पहले वाला जो 0 है दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनपुट एंड द अदर 0 इज रिप्रेजेंटिंग द आउटपुट, राइट। तो सिमिलरली अब हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर देखते हैं कि व्हेन वी हैव 0 1, अब हम 0 1 स्टेट के ऊपर हैं। तो 0 1 स्टेट जो है, जब इनपुट इज 0, तो अगेन ये वापस जा रही है और आउटपुट जो है y वो 1 बन रही है। तो इसका मतलब 0 1 और अगेन ये वापस 0 0 के ऊपर जा रही है। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट 0 1 से 1 1 पे भी जाएगी, इसका मतलब कि ये यहाँ पर भी जाएगी। और इसके लिए सिनेरियो क्या है कि इनपुट इज 1 और आउटपुट इज 0, राइट। तो अब हम 1 0 के ऊपर आते हैं।
सॉरी 1 1 के ऊपर ही हम हैं। तो 1 1 से नेक्स्ट स्टेट बन रही है 0 0, इन विच केस व्हेन वी हैव x इक्वल्स 0 और आउटपुट है आपके पास y, आउटपुट भी आपके पास 0 है, सॉरी आउटपुट हमारे पास 1 है। एंड 1 1 के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेट बन रही है 1 0। अगेन एक स्टेट इसकी बन रही थी 0 0 और दूसरी स्टेट इसकी बन रही है 1 0। तो 1 0 के ऊपर हम आते हैं, लेकिन किस केस के अंदर हम आ रहे हैं? जब x इज़ 1, इनपुट इज़ 1 और आउटपुट y इज़ 0। अब हम 1 0 स्टेट के ऊपर हैं, तो हम इसको देख रहे हैं। 1 0 स्टेट से नेक्स्ट स्टेट बन रही है 0 0, राइट। और ये किस केस के अंदर बन रही है? when we have x is as 0 and output y as 1। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेट एक और बन रही है विच इज़ पॉइंटिंग टू इटसेल्फ। और इस केस के अंदर क्या हो रहा है? when we have x input is 1 और आउटपुट इज 0। I think there is some minor mistake in this. राइट, इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन। सिर्फ और सिर्फ हमने स्टेट्स यहाँ पर जिस तरह से डिफाइन किए हैं उस फिगर के अंदर एग्जैक्टली इस तरह नहीं है। इसके अंदर ऐसे है कि व्हेन वी हैव हमने 0 0 के बाद 0 1 डिफाइन किया और उसके बाद 0 1 0 के बजाय 1 1 यहाँ पर शो कर दिया, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपके पास जीरो डिटेक्टर का स्टेट डायग्राम जो है वो जिस तरह से आप मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो दिस इज द स्टेट डायग्राम ऑफ अ मीली मशीन, जीरो डिटेक्टर, राइट। अब हम आते हैं इसके वेरिलॉग डिज़ाइन के ऊपर। वेरिलॉग डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है, यू डोंट हैव टू गो थ्रू मच डिटेल्स। तो राइट, तो अब इसको डिफाइन किस तरह से किया हुआ है? दो तीन चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी नई हैं। प्रीवियसली शायद आई थिंक आई डिडंट मेंशन इट बिफोर। एक तो स्टेट्स को अलग जो हमारे पास मॉड्यूल के अंदर जो पोर्ट्स होती हैं, हमने मॉड्यूल का नाम रखा है मीली ज़ीरो डिटेक्टर। और उसके अंदर जो पोर्ट्स हमने मेंशन किए हैं, एक आउटपुट पोर्ट है Y और एक इनपुट पोर्ट है X। और आउटपुट को हमने रेज भी एज स्पेसिफाई किया हुआ है। और इनपुट्स में X के अलावा क्लॉक और रीसेट भी ये एडिशनल है। ऑब्वियसली आपको डी फ्लिप फ्लॉप चलाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए क्लॉक ज़रूरी चाहिए होती है। और वैसे भी ये स्टेट मशीन है, सो दिस मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन अ क्लॉक। और इसके अलावा रीसेट जो है एक एडिशनल सिग्नल है विच इज़ एक्चुअली रीसेटिंग दिस ज़ीरो डिटेक्टर, राइट। तो यहाँ तक तो इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स तक बात ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द स्टेट्स? स्टेट्स भी हमारे वेरिएबल्स हैं, तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए अब सिंस वी आर नॉट यूजिंग अ सिंगल बिट वायर हम यूज़ कर नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स जो हैं वो मोस्टली दे रिप्रेजेंट मोर देन सिंगल स्ट्रीम ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल साइज। तो यहाँ पर 2 बिट का एक स्टेट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक पैरामीटर कीवर्ड यूज़ किया है, राइट। अब स्टेट जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 2 बिट वेरिएबल, राइट। यहाँ पर जो रेज टाइप का एक मैंने स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया है, इसका साइज है 2। तो इसका मतलब कि ये जो 2 बिट्स हैं दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड
या इनकी वैल्यू कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्टेट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, डिक्लेयर किया। और नेक्स्ट स्टेट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, यानी स्टेट की जो करंट वैल्यू जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 2 बिट का वेरिएबल या 2 बिट का एक रेंज डिफाइन किया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेट भी तो हमारी 2 बिट की है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमने एक 2 बिट का रेंज डिक्लेयर किया, राइट। तो अब पैरामीटर है जिसके अंदर हमने एक स्टेट 0 है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है 2 बिट बाइनरी को। सिमिलरली एक स्टेट 1 है जिसकी मैंने वैल्यूज पहले से स्पेसिफाई कर दी हैं कि स्टेट की वैल्यूज जो हैं वो यही 4 वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर दे कैन बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, एंड उनको मैंने अलग वेरिएबल के नामों से स्टोर करवा दिया है। एंड उन वेरिएबल्स को मैंने पैरामीटर का कीवर्ड यूज़ किया है। एंड इसको आप कोई भी एडिशनल वेरिएबल अदर देन अ वायर पैरामीटर, अगर आप कोई अदर देन अ वायर वेरिएबल अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, तो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हम पैरामीटर का भी एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, राइट। तो मैंने 4 स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और उनको 4 डिफरेंट वेरिएबल्स से मेंशन कर दिया है या उनके नाम रख दिए हैं 4 डिफरेंट वेरिएबल्स के। एंड आफ्टर दैट मेरा ऑलवेज ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है। एंड इस ब्लॉक के अंदर क्लॉक को स्टार्ट करने के लिए आई हैव अ पॉज एज, एंड रीसेट के लिए स्टार्ट करने के लिए, यानी जब मुझे रीसेट करना है तो वो नेगेटिव एज के ऊपर वो रीसेट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब कि रीसेट अगर, तो यहाँ पर रीसेट की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि डिटेक्टर जो ये 0 डिटेक्टर जो है इट शुड रीसेट, और अगर रीसेट की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब कि ये एज 0 डिटेक्टर ऑपरेट कर रहा होगा। तो अभी पहली कंडीशन भी एग्जैक्टली यही रिप्रेजेंट कर रही है कि इफ़ रीसेट इज़ 0 तो स्टेट को 0 के ऊपर रीसेट कर दें, यानी S0 के ऊपर रीसेट कर दें। मैंने स्टेट वेरिएबल के अंदर जो प्रेजेंट स्टेट है उसके अंदर S0 स्टोर करवा दिया, इफ़ रीसेट इज़ 0, एल्स जब रीसेट आपके पास हाई है तो अब मुझे लॉजिक बनानी है फॉर मीली 0 डिटेक्टर, बिल्कुल उसी स्टेट डायग्राम को देखते हुए। तो इसके अंदर दो जो है ट्रिगरिंग वेरिएबल्स हैं, ये 2 ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं। एक है स्टेट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है ऑलवेज ब्लॉक, और दूसरा ये एक्स इन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। ये आप समझ लें कि नेस्टेड ऑलवेज ब्लॉक है, कि आपने ऑलरेडी जो मेन ऑलवेज ब्लॉक है वो बनाया हुआ है। अब ये जो ऑलवेज ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक फॉर योर मेली स्टेट मशीन या मेली ज़ीरो डिटेक्टर। इस ज़ीरो डिटेक्टर के लिए अब अलग से, अब चूंकि मेरी अब एल्स स्टेटमेंट के बाद, यानी एल्स के बाद मैंने यहाँ पर स्टेट के अंदर नेक्स्ट स्टेट स्टोर करवाई है, ठीक है। उसके बाद अब मेरे यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट जो है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप मुझे सेट करना है, वो मैंने यहाँ पर एक अलग से ऑलवेज ब्लॉक स्टार्ट किया है, ये उसका पार्ट है, ठीक है। अब उसके अंदर इसके 2 ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं, स्टेट और एक्सन, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मैंने केस एक स्टार्ट किया, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में स्टार्ट कर रही हूँ और उसके अंदर केस ले रही हूँ स्टेट का, यानी ये स्टेट के ऊपर ये डिपेंड कर रही है ये स्विच स्टेटमेंट। एंड केस अगर S0 है, यानी अगर मेरे पास जो स्टेट के अंदर या प्रेजेंट स्टेट के अंदर नेक्स्ट स्टेट अगर आ गई है और उस स्टेट की वैल्यू जो है वो S0 है, तो तब क्या करो कि अगर पहले उसके अंदर चेक कर लो कि अगर एक्स इन जो है वो 0 है, तो फिर क्या करें कि अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं तो उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने बिगिन और एंड का एक ब्लॉक बनाया है। बिगिन और एंड का ब्लॉक बनाने का पर्पस ही ये होता है कि आपने अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है तो आप बिगिन एंड का के कीवर्ड्स आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिगिन एंड के ब्लॉक के अंदर पहली कमांड एग्जीक्यूट करवाई है कि नेक्स्ट स्टेट के अंदर S0
हम पुट कर देंगे एग्जैक्टली लाइक दिस कि जब हमारे पास S 0 है, ये है हमारे पास S 0, ये है S 0, ये है S1, S2 और S3। यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही स्पेसिफाई किया है। यस, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक जब हमारे पास इनपुट ज़ीरो है और आउट, तो ये दिस विल बी पॉइंटिंग, यानी इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो भी S0 ही बन जाएगी और आउटपुट जो है दैट विल बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली यही लॉजिक पोर्ट्रे हो रही है कि जब हमारे पास इनपुट x ज़ीरो है, x इनपुट ज़ीरो है, तो तब क्या करो कि नेक्स्ट स्टेट को अगेन अपनी तरफ ही पॉइंट कर रहा है, यानी एस केस भी हमारा S0 था और हमने नेक्स्ट स्टेट भी उसकी S0 ही बना दी है और y आउट के ऊपर मैंने वैल्यू सेट कर दी है कि दैट दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। अब एल्स अगर S0 जो है यानी अगर मेरे पास x इन जो है वो ज़ीरो नहीं है, ठीक है, केस यही है S0 वाला, लेकिन अब मेरे पास x इन इज इक्वल टू 1, तो तब क्या करो अकॉर्डिंग टू दिस जब हमारे पास x is 1 तो आउटपुट y शुड बी 0 और इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है S1। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही किया हुआ है कि नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू S1 और आउटपुट y आउट जो है दैट दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यानी इन बोथ केसेस के अंदर आउटपुट यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब हमारे पास नेक्स्ट केस स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट केस के अंदर भी दो ही हमें चेक्स लगाने हैं। तो इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि बिगिन और एंड के दरमियान हमने दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाई हैं। नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू S0 अकॉर्डिंग टू दिस। व्हेन S1 है तो इसकी एक नेक्स्ट स्टेट जो है दैट इज इक्वल टू इनपुट ज़ीरो के केस के अंदर हमारे पास नेक्स्ट स्टेट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स S0 और आउटपुट इज Y। और एक और केस के अंदर जब हमारे पास x इज 1 तो आउटपुट इज y एंड नेक्स्ट स्टेट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स S3। तो इसको हम यहाँ देखते हैं कि व्हेन x इज 0 तो आउटपुट नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू S0, यस, और y आउट इज इक्वल टू 1, यस, यही हम चाह रहे थे। और एल्स जब हमारे पास x इन इज 1 तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट शुड बी इक्वल टू राइट, यहाँ पर आई थिंक कोड जिन्होंने बनाया है उन्होंने इसको S2 मेंशन किया और इसको S3 मेंशन किया है। तो इट डजेंट मैटर, आप बेशक इसको यहाँ पर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माय लॉजिक यहाँ पर S3 होना चाहिए, तो बाकी जो केस है इसके अंदर वो थोड़ा इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। तो इट डजेंट मैटर, ये कोड आपकी बुक में ही मेंशन्ड है और वहीं से ही इसको रीडिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर इसको ट्रांसलेट किया गया है और उस वहीं से ही इसी को यूज़ किया है। वी डिडंट मेक एनी चेंजेस इन दैट। और उसके बाद केस S2 है। S2 के अंदर अब नेक्स्ट स्टेट क्या बन रही है, S2 की नेक्स्ट स्टेट एक ये बन रही है 0 0 और एक स्टेट बन रही है S3 यानी 1 0, ठीक है। तो यही इसने किया है कि इसकी एक स्टेट जो है नेक्स्ट स्टेट S0 है और एक स्टेट जो है नेक्स्ट स्टेट S3 है, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली दैट आपने किसी भी स्टेट डायग्राम को देखते हुए वेरिलॉग कोड किस तरह से लिखना है। और वी ऑलरेडी नो दैट दिस वेरिलॉग कोड हैज़ बीन डिज़ाइंड यूजिंग बिहेवियरल मॉडलिंग। एंड बिहेवियरल मॉडलिंग के अंदर हम लोग गेट लेवल डिज़ाइनिंग नहीं करते, हम सिर्फ एक सर्किट का बिहेवियर या किसी भी सिस्टम का बिहेवियर जो है उसको डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एंड केस हो रहा है और एंड मॉड्यूल है और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट बेंच। टेस्ट बेंच के अंदर ये टेस्ट बेंच भी इसके अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पर
जब यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया, अब यहाँ पर जो मीली ज़ीरो डिटेक्टर है, फर्स्ट आपने यहाँ पर मेंशन किया मॉड्यूल टीबी, जो भी आपका था मीली ज़ीरो डिटेक्टर, मैंने टेस्ट बेंच का जो भी नाम रखा है, राइट। उसके बाद मैंने जो भी वेरिएबल्स हैं इनपुट और आउटपुट उनको स्पेसिफाई कर दिया। आउटपुट को मैंने एज वायर रिप्रेजेंट किया है और इनपुट को एज रेज रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद मैंने इंस्टेंसिएशन करनी है। इंस्टेंसिएशन करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक तो तरीका जो ट्रेडिशनल है वो यही है कि आप यही यूज़ करें, दिस वन, यानी आप हर एक को यूजिंग अ डॉट हर इनपुट वेरिएबल को आउटपुट वेरिएबल के साथ जो टेस्ट बेंच का जो वेरिएबल है उसको मॉड्यूल के वेरिएबल के साथ आप लिंक करें। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने ये किया है बेसिकली कि जो टेस्ट बेंच के वेरिएबल्स हैं उनके नाम चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पर हर एक के साथ टी अंडरस्कोर लगा दिया है हर वेरिएबल के साथ। तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर टेस्ट बेंच के वेरिएबल्स के नाम भी चेंज करने पड़ेंगे। टी अंडरस्कोर, टी अंडरस्कोर, टी अंडरस्कोर क्लॉक और टी अंडरस्कोर रीसेट। ठीक है, तो अगर मैं ये इंस्टेंसिएशन का प्रोसीजर यूज़ कर रही हूँ तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। एंड अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से इंस्टेंशिएट कर रही हूँ तो मैं प्रीवियस प्रोसेस को कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल का जो नाम है उसको कॉल किया है, उसका नाम डिक्लेयर किया है और उसके बाद मैंने जो भी टेस्ट बेंच के वेरिएबल्स हैं उनको पास कर दिया है। ठीक है, तो ये इंस्टेंशिएट करने का डिफरेंट तरीके हैं। तो अब मैं एक चीज़ है कि मुझे क्लॉक स्टार्ट करनी है ऑब्वियसली। तो क्लॉक स्टार्ट करने के लिए मैंने एक इनिशियल ब्लॉक स्टार्ट किया और इनिशियल ब्लॉक जो है वो यहाँ पर एंड कर दिया। ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर मैंने क्लॉक को यूजिंग अ फॉरएवर कमांड फॉर हर 5 नैनो सेकेंड्स के डिले के बाद उसको निगेट कर रही हूँ। सो दैट्स हाउ माई क्लॉक विल एक्चुअली फ्लिप इटसेल्फ एवरी 5 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद एक कमांड है इनिशियल फोर्क। ये इनिशियल फोर्क जो है दो टाइप्स के होते हैं इनिशियल ब्लॉक्स। एक इनिशियल ब्लॉक होता है एक इनिशियल ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम बिगिन से स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं और एंड पर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और इनिशियल ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम फोर्क से, बोथ इनिशियल ब्लॉक्स ही हैं और उसके अंदर हम फोर्क से स्टेटमेंट्स स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूट करना और एंड पर हम जॉइन कमांड लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम, ये ब्रैकेट्स नहीं होता है यहाँ पर, इनिशियल का के बाद हम बिगिन के बाद हम स्टेटमेंट्स जितनी भी हमने एग्जीक्यूट करवानी है उसके बाद हम एंड करते हैं। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों मॉड्यूल्स में, फोर्क वाले और बिगिन वाले में? डिफरेंस मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के अंदर मेंशन किया हुआ है। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर सोर्स मेंशन कर दिया है, सिर्फ कोट हुई हुई है। वी कैन नॉट एक्चुअली, आप इसको अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज दिस फोर्क जॉइन की जो मॉड्यूल है या लूप है, दिस विल ओनली वर्क इन योर टेस्ट बेंच। ये मेन मॉड्यूल के अंदर ऑपरेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक मेन मॉड्यूल बना हुआ है जिसकी एक एग्जांपल ली हुई है। तो Xilinx के अंदर जो है पर्टिकुलरली फोर्क और जॉइन का जो कमांड है ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बेंच में एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इसके अंदर फ़र्क दिखाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कोट की है। नेस्टिंग का एक मॉड्यूल बना हुआ है जिसके अंदर ABCDEF 6 वेरिएबल्स हैं और ये सब वेरिएबल्स आउटपुट टाइप के हैं, राइट। और ये रेज टाइप के भी हैं। उसके बाद इनिशियल और बिगिन, ये
और ये एक लूप चला हुआ है जिसके अंदर इनिशियल और के बाद बिगिन के बाद मैंने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हैं जिनको कंबाइन करने के लिए ये इनिशियल बिगिन का एक ब्लॉक बनाया हुआ है। एंड इस ब्लॉक के अंदर हम सिर्फ असाइनमेंट कर रहे हैं, 0 को ए में असाइन कर रहे हैं, 0 को बी में, 0 को सी में, सिमिलरली 0 को एफ में। यहाँ पर ये ब्लॉक एंड हो रहा है, बिगिन ब्लॉक। उसके बाद मेन मॉड्यूल है ऑलवेज ऐड पॉजिटिव एज क्लॉक। उसके बाद फोर्क स्टार्ट हो रहा है, इसको आप इनिशियल के बाद भी फोर्क स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या कर रहे हैं कि #2 मीन्स 2 नैनो सेकेंड्स की डिले के बाद 1 को ए में असाइन कर दो, उसके बाद 2 नैनो सेकेंड्स की डिले के बाद 1 को बी में असाइन कर दो, ठीक है। अब ये 2 नैनो सेकेंड्स के डिले का मतलब ये है कि इन दोनों असाइनमेंट ऑपरेटर्स को एट द सेम टाइम, मतलब कि ये सेम टाइम यूनिट्स हैं, तो इन्हीं सेम टाइम यूनिट्स के ऊपर जो टाइम यूनिट आप यहाँ मेंशन करेंगे उसी टाइम यूनिट के ऊपर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद एक नेस्टेड बिगिन एंड का एक लूप चलाया है, एक ब्लॉक चलाया है जिसके अंदर सेम कमांड्स हैं, लेकिन अब सेम वही डिले यूज़ किया है और 1 को सी के अंदर, 1 को डी के अंदर, 1 को ई के अंदर स्टोर करवाया, राइट। उसके बाद बिगिन का भी, यानी एक फोर्क का ब्लॉक चल रहा था और उसी के अंदर एक नेस्टेड बिगिन का भी ब्लॉक चल रहा है। तो अब इसका बिहेवियर हम देखते हैं। उसके बाद एक और हमने एग्जाम्पल के अंदर #2 यानी 2 नैनो सेकेंड्स के बाद 1 को एफ के अंदर स्टोर करवाया। तो इसका बिहेवियर इस टाइमिंग वेवफॉर्म के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि ये है 2 नैनो सेकेंड्स यहाँ पर कहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2 नैनो सेकेंड्स के बाद पहले तो उसने ज़ीरो से यहाँ पर, इससे पहले ज़ीरो से इनिशियलाइज कराया है यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को। ये एफ है, ये एफ है, ई है और डी, सी, बी और ए, ठीक हो गया। तो सबको इनिशियली ज़ीरो से इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद 2 नैनो सेकेंड्स के बाद 2 नैनो सेकेंड्स यहाँ पर बन रहा है, यानी 2 नैनो सेकेंड्स के पॉइंट पे सबसे पहले ए को आई थिंक उल्टा है, इस तरह से सी डी ई एफ, राइट। तो ए के अंदर 2 स्टोर हो रहा है। सिमिलरली बी के अंदर आई थिंक प्रीवियसली ही ठीक लिखा हुआ था, ऐसा ही आई फॉरगॉट टू एक्चुअली ना, इसको मुझे जिस तरह से कॉपी करना था वो शायद थोड़ा सा पार्ट इसका मिस हो गया है। दिस विल बी एफ, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ। तो 2 नैनो सेकेंड्स की डिले के बाद सबसे पहले ए जो है उसकी लॉजिक हाई बन रही है। सिमिलरली बी की भी लॉजिक हाई बन रही है, ठीक हो गया। यानी एग्जैक्ट एट 2 नैनो सेकेंड्स बोथ ए और बी आर बिकमिंग 1। उसके बाद अब बिगिन का लूप स्टार्ट हो रहा है, तो अब हमारे पास सी और डी का बिहेवियर हमें देखना है। तो 2 नैनो सेकेंड्स के बाद सी हाई, लॉजिक हाई हो रहा है, बट डी लॉजिक हाई नहीं हो रहा, क्योंकि अब ये एग्जैक्ट 2 नैनो सेकेंड्स की लोकेशन के ऊपर या 2 नैनो सेकेंड्स के टाइम के ऊपर ये 1 को डी के अंदर स्टोर नहीं करवाएगा। अब वो पहले प्रीवियस कमांड को एग्जीक्यूट करवाएगा, यानी एट अ डिले ऑफ 2 नैनो सेकेंड्स सी के अंदर 1 को स्टोर करवा रहा है और उसके बाद 2 नैनो सेकेंड्स का फर्दर डिले दे रहा है, यानी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जब 4 नैनो सेकेंड्स हैं तो यहाँ पर ये सी के अंदर डी के अंदर 1 को स्टोर करवा रहा है, राइट। सिमिलरली अब उसके बाद 2 नैनो सेकेंड्स का मज़ीद डिले दे रहा है, यहाँ पर ये 6 नैनो सेकेंड बन रहा है, यहाँ पर ये ई के अंदर 1 को स्टोर करवा रहा है, राइट। और उसके बाद है अगेन 2 नैनो सेकेंड, अब ये 4 का पार्ट ही है, 2 नैनो सेकेंड के डिले पे
या 2 नैनो सेकेंड के टाइम पे एफ के अंदर अगेन यहाँ पर एफ के अंदर 1 को स्टोर करवा रहा है, राइट। सो यू आर सीइंग द बिहेवियर कि एक्चुअली ये बिहेव किस तरह से कर रहा है फोर्क का, और फोर्क जॉइन का ब्लॉक और बिगिन और एंड का ब्लॉक। तो यही चीज़ है कि इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर इनिशियली रीसेट वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करवा दिया और 2 नैनो सेकेंड्स के डिले के बाद अब चूंकि इनिशियल फोर्क है तो यहाँ पर हम डिले एक्चुअली डिले मेंशन नहीं कर रहा। ये #2 इज नॉट मेंशनिंग द डिले, इट इज एक्चुअली मेंशनिंग द एग्जैक्ट 2 नैनो सेकेंड्स टाइम बार। तो 2 नैनो सेकेंड के ऊपर जब टाइम आएगा या टाइमिंग वेवफॉर्म आएगी तो आपके पास टी रीसेट जो है दैट विल बिकम 1। अब ये ऑपरेटिव मोड में है, तो अब हम इसके अंदर जो भी वैल्यूज पुट करेंगे एट वट एवर टाइम वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो अब एट टाइम पीरियड 87 अगेन टी रीसेट को 0 कर दिया गया है, इसका मतलब कि अगेन ये इनएक्टिव मोड में है। और एट टाइम पीरियड 89 अगेन टी रीसेट को 1 कर दिया, अब ये एक्टिव मोड में है। तो अब एक्टिव मोड में होने के बाद टाइम पीरियड 10 यानी अब वो इस चीज़ को नहीं देख रहा कि प्रीवियस कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हुई, वो किस टाइम पीरियड के ऊपर एग्जीक्यूट हुई। उसने सिर्फ ये देखा कि प्रीवियस कमांड एग्जीक्यूट हो गई है और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब ये एक ऑपरेटिव मोड में है आपका जो मीली मशीन है। और ये 10 नैनो सेकेंड एग्जैक्ट 10 नैनो सेकेंड के टाइम के ऊपर इनपुट को 1 कर देगा और उसके बाद 30 नैनो सेकेंड्स के बाद ये बेशक इट डजेंट मैटर कि हमने रीसेट को 89 नैनो सेकेंड के ऊपर जाकर किया था, बट अब वो ये अज्यूम कर रहा है कि इट इज़ इन एक्टिव मोड और अब ये जिस भी टाइम पीरियड के ऊपर आप इसको कमांड देंगे ये वैल्यूज़ को स्टोर करवाता जाएगा, राइट। और सिमिलरली अब इसको हर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर टी_x_इन की वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा है। तो अब अगर अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक जो हमारा ज़ीरो डिटेक्टर है, जब जब ज़ीरो आएगा इनपुट के ऊपर तो आउटपुट को उसको हाई करना चाहिए, राइट। तो अगर ये हाई करता है सो दैट मीन्स कि दिस विल एक्चुअली ऑपरेट एज ज़ीरो डिटेक्टर। तो इसको मैं ऑलरेडी इसको सिंथेसाइज कर चुकी हूँ तो इसको मैं फर्दर सिंथेसाइज नहीं करूँगी एंड आई विल सिंपली गो टू द टाइमिंग वेवफॉर्म। तो इसी टाइमिंग वेवफॉर्म को हम ऑब्जर्व करते हैं। इनिशियल फोर्क के बाद इसका जॉइन जो एंडिंग स्टेटमेंट है वो हमें लाजमी लिखनी है और उसके बाद हम मॉड्यूल अपना एंड करेंगे। सो लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व इट। राइट, इसको हम थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। लेट्स ट्राई टू राइट। तो हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से शो करवा रहा है, ये टी रीसेट, टी क्लॉक, टी इन और टी आउट, एक्स इन और वाई आउट, ये दोनों मेन वेरिएबल्स हैं जिनका बिहेवियर हमें ऑब्जर्व करना है। तो इनको हम कलर चेंज कर लेते हैं। अगर लेट्स और ये है वाई इनपुट के अंदर हमारी अजम्पशन ये है कि जब भी ज़ीरो आएगा तो आउटपुट शुड बी हाई, यानी ज़ीरो डिटेक्ट कर रहा है। तो अब हमने फर्स्ट यहाँ पर रीसेट होने के बाद हमने यहाँ पर ये 10 नैनो सेकेंड्स के ऊपर टी इन एक्स इन को 1 किया था, तो आउटपुट शुड बी लो। तो एट एक्स
10 नैनो सेकेंड यहाँ पे कहीं बनते हैं। तो इसके ऊपर टी इन इज़ हाई, यस इट इज़ हाई, और आउटपुट इज़ लो। तो इसका मतलब कि ये कब तक लो रहेगी, जब तक हमने नेक्स्ट टाइम पीरियड का हमने कुछ मेंशन ना किया हो। तो 10 के बाद 30 के ऊपर, यानी 10 से 30 तक वैल्यू सेम रहेगी। अब 30 के ऊपर हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने एक्स एन की वैल्यू ज़ीरो कर दी है। तो ज़ीरो का मतलब है कि वाई आउट शुड बी 1। तो यानी 30 नैनो सेकेंड यहाँ कहीं बन रहे हैं। तो इसके ऊपर यस, टी ऑफ एक्स ऑफ इन जो है वो ज़ीरो हो गई है, और आउटपुट टी ऑफ वाई ऑफ आउट जो है दिस इज बिकम हाई। और ये कब तक हाई रहेगी, जब तक हम नेक्स्ट टाइम पीरियड पर नहीं आता है, यानी 40 के ऊपर। 40 के ऊपर हमने इसको 1 कर दिया है। तो अगेन यहाँ के बाद अगेन आउट इनपुट जो है यहाँ पर चूंकि ठीक है, तो यहाँ पर टी टी ऑफ एक्स ऑफ इन जो है दैट इज बिकम, ये 40 के ऊपर ये 1 बन रही है, और आउटपुट इज बिकमिंग 0, राइट। तो उसके बाद 50 के ऊपर हमने अगेन 0 पास करवाया है, और उसके बाद 54 के ऊपर हमने 0 पास करवाया है, और 70 के ऊपर 50, 54 एंड 70। तो 50 आपका यहाँ बन रहा है समहाउ। यहाँ पर अगेन यस, एक्स ऑफ एन 0 है और वाई ऑफ आउट 1 है, और 54 यहाँ पे बन रहा है 0, ये 0 है, और एक्स ऑफ वाई ऑफ आउट जो है दैट इज हाई। अब डिफरेंस आ रहा है कि अगेन हमने ये दोनों चीज़ें जो है थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, कि 70 नैनो सेकेंड्स के ऊपर एक्स इन को 1 कर दिया, और 80 के ऊपर एक्स इन को स्टिल 1 रखा है। लेकिन उसके बाद 70 के ऊपर अगेन हम 70 के ऊपर टी एक्स ऑफ इन को हम 0 कर देते हैं। तो इसका मतलब कि प्रीवियस दोनों कमांड्स, दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो इस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, तो प्रीवियस 70 के ऊपर जो भी पड़ा होगा उसको वो ओवरराइट कर देगा। तो 70 यहाँ पर कहीं बन रहा है। तो यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि हम यहाँ पर एक्स ऑफ इन को राइट, एक्स ऑफ इन को हम 0 पास करवा रहे हैं यहाँ पर। सेवेंटी, यस ये 70 बनता है। तो 70 के ऊपर हमने एक्स ऑफ इन को 0 कर दिया, लेकिन आउटपुट जो है दैट इज स्टिल 0, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक्स ऑफ इन इज was previously 1, और 80 के ऊपर हमने इसको 1 पास किया है। 80 के ऊपर 1 पास किया, राइट। तो इसका मतलब कि यहाँ पर समहाउ जब हमने इसको 70 के ऊपर दो डिफरेंट वैल्यूज ओवरराइट की हैं, तो आउटपुट जो है वो इफेक्ट हो गई है, राइट। तो बेशक उसने ओवरराइट कर दिया इनपुट, लेकिन आउटपुट जो है वो स्टिल यही अज्यूम कर रही है कि इनपुट जो है दैट इज इक्वल टू 1, जो हमने प्रीवियसली अप्लाई की हुई थी, राइट। तो अब हम यहाँ पर 80 के ऊपर हमने एक्स ऑफ एन को 1 कर दिया, और ऑब्वियसली आउटपुट 0 ही आ रही है। तो उसके बाद 100 के ऊपर, यस 100 के ऊपर अगेन हमने 0 पास किया, और 160 के ऊपर हमने 0 पास किया। तो 100 के ऊपर यस हमने 0 पास किया, तो आउटपुट 1 हो गई। और उसके ऊपर उसके बाद सारे केसेस के अंदर यस ये सिर्फ और सिर्फ 160 के ऊपर जाकर आउटपुट हाई आ रही है जब हमारे पास इनपुट 0 है, राइट। So this means कि this is working correctly, exactly to what we wanted. तो अब हम आते हैं टास्क्स के ऊपर।
those tasks are the important ones, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आपको innovative काम करना पड़ेगा. The task one is that you have to design and implement a sequence detector having one bit input S and one bit output D that detects 1 0 and 0 1 on its input according to the following rule, where T indicates a time instance. अब रूल क्या है कि S ऑफ यानी जो हमारे पास 1 बिट इनपुट S है उसकी नेक्स्ट स्टेट और उसकी प्रेजेंट स्टेट, इन दोनों के दरमियान अगर आप X और लें, ठीक है, और आउटपुट 1 आए तो क्या करें कि D के अंदर जो आउटपुट है हमारी 1 बिट आउटपुट, दैट शुड बी इक्वल टू 1 एल्स D शुड बी इक्वल टू 0. ये एक रूल है छोटा सा. और ये जो हमारे आप जो भी स्टेट मशीन इसकी डिज़ाइन करेंगे यूजिंग, आपने एक तो इसके अंदर मोर्स अप्रोच यूज़ करनी है. ठीक है, मोर्स अप्रोच यूज़ करने का मतलब ये है कि आउटपुट शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ इनपुट, राइट. तो आपने एक फाइनाइट स्टेट मशीन डिज़ाइन करनी है जो कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो को जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है इसको फुलफिल कर रही हो. फिर आपने स्टेट मशीन को सिंथेसाइज करना है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप. आप डी फ्लिप फ्लॉप के अलावा कोई और फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ करना चाहते हैं, इट डजंट मैटर. एंड इसके बाद इसकी इक्विवेलेंट मीली इम्प्लीमेंटेशन भी प्रेजेंट करनी है, राइट. तो मीली इम्प्लीमेंटेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि यू शुड मेक इट अ फंक्शन ऑफ इनपुट. और इसके ऊपर हम ये दोनों टास्क 2 जो हैं इसको और पॉइंट 4 जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स ट्राई टू वाइंड अप इट नाउ. आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. आई एम एंडिंग दिस सेशन. अल्लाह हाफिज़.